Jai Hind students, in this video I am going to describe the Calvin cycle, the cycle that was discovered by Melvin Calvin, and this cycle describes the biosynthetic pathway of the formation of glucose during the process of photosynthesis. In the previous classes, we have already discussed one process of photosynthesis, that was light reaction. In that light reaction, ATP and NADPH was being produced. Now we have also discussed that where the ATP and NADPH produced is used, that was biosynthetic phase. So this biosynthetic phase is which is taking place in the stroma of the chloroplast. The ATP production and NADPH production, the cycle was taking place in the membranous system of the chloroplast. Now the reaction is shifted to the stroma. This reaction is taking place in the stroma, and in this reaction these products produced during the light reaction will be utilized. The whole cycle of this biosynthetic phase was first of all described by Melvin Calvin using radioactive carbon. So in this video this cycle will be taught, and one basic concept you must understand before studying this cycle, that it is named cycle. इस बायोसिंथेटिक फेज को जिसको माल्विन कैल्विन ने डिस्क्राइब किया, उसका नाम साइकिल दिया. आप साइकिल कंसेप्ट से निकालिए, इस बात को दिमाग में रखकर चलना है कि इस पूरे बायोसिंथेटिक फेज में जो भी सब्सटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा, इट विल बी जनरेटेड अगेन, फिर से जनरेट होगा, तभी तो वो साइकिल बन पाएगा. अगर कोई सब्सटेंस है इस पूरे बायोसिंथेटिक फेज में वो पार्टिसिपेट कर रहा है और फिर वो सब्सटेंस आके उसी सब्सटेंस पे आके वो पूरा रिएक्शन एंड करे, देन इट विल बी इन अ सर्कुलर फॉर्म. सो आप इस कैल्विन साइकिल के जब स्टेप्स को पढ़ेंगे तो इस स्टेप्स में जितने रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, उस रिएक्शंस के दौरान आपको एक बात याद रखनी है हमेशा कि जो भी इस रिएक्शन में इस पाथवे में यूज हुआ है उसको फिर से बनना है, तभी ये साइकिल कंप्लीट हो पाएगी. नहीं तो इसका नाम कैल्विन साइकिल नहीं होता, इसका नाम कैल्विन स्टेजेस ऑफ रिएक्शन होता, कैल्विन लीनियर स्टेजेस ऑफ रिएक्शन होता. अगर साइकिल फिर से लौट कर वही नहीं आती, तो अगर रिएक्शन फिर से लौट कर वही नहीं बनता, तब ये लीनियर रिएक्शंस होते. लाइक ग्लाइकोलाइसिस इज अ लीनियर रिएक्शन, बट आप यहाँ ध्यान देंगे इट इज अ साइक्लिक रिएक्शन. सो व्हाट इज बीइंग यूटिलाइज्ड विल बी फॉर्म्ड जनरेटेड अगेन. Now come to the steps of how many steps these biosynthetic pathway of production of glucose that was described by Melvin Calvin is divided. Many concepts we have already studied in the live class, that it is also named as C3 cycle because the first stable product after absorption of CO2 is made up of 3 carbon molecule, and that is your phosphoglyceric acid, what is given in the previous para. Now come to the stages of cycle. We have already studied that the first stable product is C3 cycle, so it is also C3 product, that is phosphoglyceric acid, so it is also called as C3 cycle. It is taking place in stroma, and the products ATP and NADPH will be utilized. Now the whole pathway is divided into 3 stages. The first stage is carboxylation, second stage is reduction, third stage is regeneration. The name of the stages is given on the important, the vital reactions that is taking place during that stage. आप इस स्टेज के नाम से ही इस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर पाएंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. कार्बोऑक्सीलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें ऐड हो रहा है. ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बोऑक्सीलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड होगा. रिडक्शन हो रहा है मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन होगा. रिडक्शन कब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में? देन व्हेन देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन.
रीजनरेशन मीन्स जो प्रोडक्ट, जो भी केमिकल सब्सटेंस यूज हुआ है उसका रीजनरेशन होगा, वो फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा, देन अ साइकिल विल बी कंप्लीटेड एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ड्यूरिंग दिस साइकिल, concentrate on the whole cycle, we have to concentrate on the number of carbons, so that there will be a basic clear concept of cycle and basic clear image will be established in your mind. So concentrate on the number of carbons. ये जो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं, इसको डिफरेंट बुक ने डिफरेंट तरीके से बताया है, लेकिन सारे प्रोसेस का बताने का मतलब यही है कि जो सब्सटेंस यूज हो रहा है, जितने कार्बन, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एडप्ट करने के लिए जो कार्बन यूज हुआ वो फिर से बनेगा. सो डिफरेंट बुक्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से इस रिएक्शन को डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूलर नंबर को डिफरेंट वेज में लेते हैं, लेकिन सबका प्रोसेस जो है वो एक ही है. मैं एक मॉलिक्यूल से कार्बन से चल रही हूं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन, द फर्स्ट एडाप्टर ऑफ दिस CO2 that is being utilized, that is coming from atmosphere, and water is already present in the plant. So here we are not concentrating on water. How this carbon dioxide is being fixed? The first acceptor of this molecule CO2 is a 5 carbon molecule, that is ribulose 1,5-bisphosphate. Bis means 2, phosphate means the molecule will have, the compound will have phosphorus in its compound. So ribulose 1,5-bisphosphate means फर्स्ट कार्बन पे और इसके 5th कार्बन पे फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 2 बिसफॉस्फेट हो गया. राइबुलोज क्यों? क्योंकि ये 5 कार्बन का बना हुआ है और ये एक कीटोनिक शुगर है. ये जो मैं फॉर्मूला दी हूँ ये मॉडलिक फॉर्मूला है, कोई इनका केमिकल फॉर्मूला को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है. टिल क्लास 11th you also don't need to represent it by chemical formula or in cyclic form like pyran form or furan form. Represent by only this. If you are not understanding, you are not able to write this only in the exam also, then you can write only the chemical name also. Okay, so this is ribulose 1,5-phosphate, means it is made up of 5 carbon, 2 phosphorus group is combined at the first carbon and the second carbon. It is the first acceptor of the carbon dioxide coming from the atmosphere. Now this carbon will come into the plant through stomata. It will reach the stroma of chloroplast and it will be accepted by ribulose 1,5-bisphosphate that is already present in the stroma. Now this is the vital reaction taking place in the plants, very important reaction. So it must be, we have already studied in the enzymes that no biophysical process, no biochemical process takes place without any help of enzyme. कोई भी ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और वो बिना किसी एंजाइम की मदद से हो. तो बहुत ही वाइटल एंजाइम रूबिस्को है जो कि इस पूरे फोटोसिंथेसिस की जान है, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड हियर. रूबिस्को इज प्लेइंग द मेन रोल ऑफ catalyst and this rubisco is ribulose bisphosphate. Here it is given in your book that ribulose RUBP, ribulose carboxylase oxidinase, so it is called as rubisco. रूबिस्को, राइबुलोज, RUBP, राइबुलोज, कार्बोऑक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज, ये दोनों कार्बोऑक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज का टर्म इसमें इसलिए यूज हुआ क्योंकि इस एंजाइम में कैपेसिटी है कार्बोजाइलेशन की, मीन्स ये किसी कंपाउंड में CO2 भी ऐड करा सकता है और किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन भी ऐड करा सकता है. सो ये कैटलिस्ट एंजाइम जो है वो 2 रिएक्शन में यूज होता है, कार्बोजाइलेशन के रिएक्शन में भी, मीन्स एडिशन ऑफ CO2 में भी एंड एडिशन ऑफ O2 में भी.
इस रुबिस्को एंजाइम को कभी नहीं भूलेंगे और इसके एक्टिविटी को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसके इसी एक्टिविटी के कारण हम अगला साइकिल जो पढ़ेंगे C4 साइकिल, ये राइबोलोज के इस कैरेक्टर के कारण ही अगला साइकिल हमें पढ़ना पड़ रहा है। अगर राइबोलोज में इस ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन C3 साइकिल पे ही होता, कोई अगले साइकिल की बात नहीं होती। तो ये जो रुबिस्को है, देखिए नेचर में कोई भी चीज इतना आसानी से नहीं होता। इतनी बड़ी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कुछ तो लोचा प्रॉब्लम जरूर होगा। तो ईश्वर ने, नेचर ने इस एंजाइम को ऐसा बना दिया कि ये कार्बो ऑक्सीलेशन भी करा सकता है। मीन्स राइबोलोज में कार्बन डाइऑक्साइड का भी एडिशन हो सकता है ये एंजाइम्स की हेल्प से, और इसमें ऑक्सीजन का भी एडिशन हो सकता है इस एंजाइम की हेल्प से। अब कब कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें एडिशन होगा और कब O2 का एडिशन होगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 पे डिपेंड करता है, जो कि फर्दर क्लासेस में हम लोग एक्सप्लेनरी वे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम के कार्बोजाइलेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ग्लूकोज की सिंथेसिस तभी होगी जब रुबिस्को एंजाइम कार्बोजाइलेशन का प्रोसेस करेगा, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस नहीं करेगा। ओके, तो रुबिस्को को आप हमेशा याद रखेंगे, ये मेन आपकी दवा है इस फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। ये मेन आपका मशीन है, मेन कैटेलिस्ट है रुबिस्को एंजाइम। इसका फुल फॉर्म हमेशा आता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सीजिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम दैट हैज बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द राइबोलोज शुगर। नाउ ये 5 मॉलिक्यूल 5 कार्बन का बना हुआ है। एक कार्बन आपका आया गैसियस एटमॉस्फेयर से CO2, कुल मिला के हो गए 6 कार्बन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड का बनेगा। चूंकि ये मिलके 6 कार्बन हुए और ये फर्स्ट स्टेबल का प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड का बना हुआ है, तो इसकी संख्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कितनी होगी? 2 होगी। हर साइकिल के हर स्टेप में कार्बन मॉलिक्यूल हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि कहीं भी CO2 या कोई कार्बन रिलीज हो नहीं रहा है। इसलिए जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट ऐड हुआ, वो पूरे साइकिल में उस कार्बन डाइऑक्साइड और इस पूरे 5 कार्बन को मिला के और इस कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन पूरे साइकिल में आपको दिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई एक्स्ट्रा कार्बन निकल नहीं रहा है और कोई इंटर भी नहीं कर रहा है। तो कार्बन मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन हुआ, आपको पूरे साइकिल में ध्यान देना है कि पूरे साइकिल में कार्बन का नंबर इक्वल रहे। 5 कार्बन आपके राइबोलोज के, 1 कार्बन CO2 का, मिलकर बना 6 कार्बन। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वो 1 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का बना हुआ है और इसके तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। देखिए राइबोलोज में 2 फॉस्फेट था, दोनों टूटा 2 मॉलिक्यूल में, इसमें भी आपके 6 कार्बन बन गए बैलेंस्ड। This whole process in which this ribulose sugar is being converted into 3-phosphoglycerate or 3-phosphoglyceric acid. In short, it is called as 3-PGA. This process is called as carboxylation. In this process, CO2 is being added with the help of enzyme Rubisco. बहुत important enzyme है ये. Now, second process. This stable product 3-PGA is made up of 2 molecules present in the stroma, 2 molecules, एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, और हर मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन का बना हुआ है। अब ये दूसरे स्टेज में जाएगा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ATP विल बी यूज्ड बिकॉज देयर इज प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, इसमें फॉस्फोरस का एडिशन होगा। तो फॉस्फोरस कहां से आएगा? ATP से आएगा। Here is the utilization of ATP that is being produced in the light reaction. ये जो फॉस्फोराइलेशन होगा with the help of ATP, आप यहाँ ध्यान देंगे कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो ATP भी कितना यूज होगा? 2 ATP यूज होगा और प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 2 ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसका,
और ये फॉस्फेट जो है यहाँ आकर ऐड होगा. सो this ATP is breaked into ADP and the inorganic phosphate that is being produced will be added here. Since there is two molecules of 3 carbon compound phosphoglycerate, so 2 ATP will be utilized and it will become 1,3-bis phosphoglycerate. नाम वही है, यहाँ पे 3 पे केवल फॉस्फोरस था, अब 1 पे भी फॉस्फोरस आ गया, इसलिए हो गया 1,3-bis मीन्स 1,3-bis phosphoglycerate. ओके, नाउ यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, इसलिए ये ग्रीन मैं इसलिए की हुई हूं कि 1 कार्बन CO2 का है और ये 5 कार्बन राइबोलोज के हैं और 1 कार्बन CO2 का है. नेक्स्ट स्टेप में इनका रिडक्शन होगा. रिडक्शन का मतलब क्या होता है किसी भी रिएक्शन में? व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन? मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन or release of oxygen. Here there will be addition of hydrogen to this molecule. तो ये एक ग्लिसरिक एसिड है, मीन्स इसमें COOH होगा. जब इसका रिडक्शन होगा then it will be converted into aldehyde. This COOH आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कार्बोजाइलिक एसिड रिड्यूस्ड होकर एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है. So when there will be addition of hydrogen means reduction होगा इस 1,3-bis phosphoglycerate का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट. इस रिडक्शन के साथ साथ इस दोनों मॉलिक्यूल के फॉस्फोरस भी बाहर निकलेंगे. यहाँ पे ऐड हुआ जो फॉस्फोरस वो यहाँ पे फिर बाहर निकलेगा. अब मन में क्वेश्चन आया कि क्यों ऐड ही हुआ जब बाहर ही निकलना है? क्योंकि इस बॉन्ड के बनने और टूटने से एनर्जी रिलीज होती है दैट गाइड्स मेनी अदर रिएक्शन, जो कि आगे रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए बहुत जरूरी है. सो यहाँ पे जिस फॉस्फोरस का एडिशन हुआ उस फॉस्फोरस को अब यहाँ बाहर निकाल दिया जाएगा. नाउ हियर ऑल्सो रिडक्शन कितने मॉलिक्यूल का हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल है. Then 2 NADPH will be utilized, 2 inorganic phosphorus will be released, 2 NADPH will be NADP plus will be released because there is 2 molecule of 1,3-bis phosphoglycerate. जब ये इसका रिडक्शन होगा मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये दोनों कंपाउंड आपका बदल जाएगा क्योंकि एक फॉस्फोरस थर्ड वाला निकल गया बाहर. ओके, सॉरी फर्स्ट वाला निकला है, ये यहाँ पे फॉस्फोरस बना रहेगा. फर्स्ट वाला आपका कार्बन फॉस्फोरस जो है वो बाहर निकल गया. नाउ एक फॉस्फोरस दोनों पे लगा हुआ है और ये एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लिसरिक एसिड था वो अब कन्वर्ट हो गया रिडक्शन होने के बाद ग्लिसरल एल्डिहाइड, ग्लाइसर एल्डिहाइड. 3 फॉस्फेट, उसके 3rd कार्बन पे फॉस्फोरस लगा रहेगा और ये 2 कार्बन इनका 2 फॉस्फोरस इनका बाहर निकल गया. यहाँ पे इस स्टेज पे ध्यान देंगे. यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों मॉलिक्यूल का, इस दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल अपना कार्बन साइकिल से बाहर निकाल देता है. ग्लूकोज के बनने के लिए एक कार्बन, मात्र एक कार्बन जो इस CO2 का कार्बन है, जो इस CO2 का कार्बन है, वो एक कार्बन इस पूरे रिएक्शन से बाहर निकल जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के बनने के लिए. यहाँ पे देखेंगे इस दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोई भी एक ग्लिसरल एल्डिहाइड क्या करेगा, अपना एक कार्बन साइकिल से बाहर निकाल देगा ताकि वो ग्लूकोज बने, ग्लूकोज बनने के लिए वहां पे इकट्ठा करेगा. ओके, बचे कितने अब? 1 2 3 4 5 कार्बन बचे, दोनों में 2 फॉस्फोरस लगा हुआ है. यहां तक के प्रोसेस को, साइकिल के प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ग्लिसरिक एसिड एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ. So the second step is reduction, and in this reduction there is utilization of 2 ATP per cycle. अभी पहली साइकिल चल रही है. And there is utilization of 2 NADPH.
इस रिडक्शन में 2 ATP का यूटिलाइजेशन होता है और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है, याद रखेंगे। सो दिस स्टेज, यहाँ तक के स्टेज को रिडक्शन कहा गया और इस रिडक्शन के एंड तक एक कार्बन को साइकिल से बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि वो ग्लूकोज का मेंबर बने। लेकिन ध्यान देना होगा, ग्लूकोज कितने कार्बन का बना होता है? 6 कार्बन का। ये जो कार्बन आया ये सेलुलर कार्बन नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन जो इंटर किया था। हम कहते हैं ना कि एटमॉस्फेरिक कार्बन से ग्लूकोज बनता है, तो क्यों सेल का कोई कार्बन ग्लूकोज में आएगा? नहीं आएगा। सेल में जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, दैट इज राइबोलोज 1,5 बाइसफॉस्फेट, वो अपना कार्बन डिनोट नहीं करता है, डोनेट नहीं करता है ग्लूकोज बनाने में। नहीं, जो ग्लूकोज बनाने में जो कार्बन यूज होगा वो एटमॉस्फेरिक कार्बन यूज होगा, क्योंकि जब अपना कार्बन यूज होने लगेगा तो इस एटमॉस्फेरिक कार्बन से क्या होगा? सो atmospheric carbon is being utilized in the formation of glucose and this glucose is made up of 6 carbon compound। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जब यहाँ से एक साइकिल चली तो इस ग्लूकोज का एक ही कार्बन फिक्स हो पाया है। इस साइकिल से ग्लूकोज का एक ही कार्बन फिक्स हुआ। 5 जो ये इनके कार्बन बचेंगे वो वाया सेवरल स्टेप्स, बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वाया सेवरल स्टेप्स तुम्हारे लास्टली राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, फॉस्फोरस तो यहाँ एक ही है, ओके, तो दूसरा, लेकिन राइबोलोज में 2 फॉस्फोरस है, तो आखिर यूज होगा ना फॉस्फोरस, इनको चाहिए एक एक्स्ट्रा, और इस साइकिल में जहां भी फॉस्फोरस चाहिए ATP को आना पड़ेगा डोनेट करने के लिए। तो इस रीजनरेशन में 5 कार्बन जो रीजनरेट करेंगे राइबोलोज को, इस रीजनरेशन में एक ATP फिर यूज होता है, देन दैट टू डोनेट दिस फॉस्फोरस, because the first acceptor of carbon was containing 2 phosphorus और इसमें यहाँ पे साइकिल पे एक ही फॉस्फोरस आया है, तो दूसरा फॉस्फोरस लाने के लिए फिर से ATP का यूज होगा और ये जो फॉस्फोरस है वो यहाँ जाके ऐड होगा। नाउ 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 ATP यहाँ फिर यूज होंगे, 2 ADP बनेगा, ओके, और ये जो फॉस्फोरस बना, ये फॉस्फोरस जाके आपके, क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस यूज होगा, 2 मॉलिक्यूल है और ये दोनों फॉस्फोरस मिलके आपके राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करेंगे। हमने पूरी साइकिल एक बार पढ़ ली। ग्लूकोज बना क्या? नहीं, ग्लूकोज नहीं बना, क्योंकि ग्लूकोज का एक ही कार्बन मेंबर मिल पाया है। ग्लूकोज अपना एक ही कार्बन एक साइकिल से ढूंढ पाया। इसके लिए आप सोचिए कितनी बार साइकिल को चलनी होगी जब ग्लूकोज को 6 कार्बन की जरूरत है। जैसे ग्लूकोज यहाँ मानिए एक बेगर है और वो कटोरा लेके खड़ा है। एक बार एक ग्रुप ऑफ पीपल आया, 1 रुपया दे दिया और इस ग्लूकोज को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनने के लिए 6 रुपए की 6 कार्बन की जरूरत है। एक बार एक भीड़ आई, 1 कार्बन कटोरे में डाला, फिर दूसरी बार इसी तरह साइकिल चलेगी, फिर दूसरा कार्बन इसको आएगा, फिर तीसरी बार चलेगी तब तीसरा कार्बन होगा, चौथी बार होगा, 5वीं बार होगा, 6ठी बार होगा, तब जाके इस ग्लूकोज का कटोरा भरेगा और 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन पाएंगे। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनने के लिए ये पूरी साइकिल जो है वो 6 बार चलेगी। 6 बार रीजनरेशन होगा, 6 बार कार्बोजाइलेशन होगा, 6 बार आपका रिडक्शन होगा। साइकिल 6 बार घूमेगी तब जाके एक ग्लूकोज का प्रोडक्ट बनेगा। पहले के ज़माने में आप वो टेलीफोन देखे होंगे, नंबर डायल होता था ऐसे, कितनी बार नंबर को डायल किया जाता था तब एक नंबर लगता था, रिंग, ओके। उसी तरह ये पूरी साइकिल 6 बार चलेगी तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि एक साइकिल में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाता है ग्लूकोज मेंबर का। ग्लूकोज का एक ही कार्बन जो है एक साइकिल से बन पाता है। इसलिए क्यों, और एक ही कार्बन क्यों, पूरे क्यों नहीं यहीं पे ग्लूकोज बना दिए? क्योंकि
इस पूरे साइकिल, ये जो पूरा बायोसिंथेटिक साइकिल है, ये साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है। मैं बार बार साइकिल 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 बोल रही हूँ बिकॉज इट इज कॉल्ड साइकिल, बिकॉज देयर इज रीजनरेशन ऑफ 5 मॉलिक्यूल। इस पूरे रिएक्शन में बेटा जो तुम 5 मॉलिक्यूल मेरा राइबोलोज का लिए हो, राइबोलोज कहता है कि तुम अपना प्लांट को बोलता है कि तुम कुछ भी बनाओ, मेरा 5 कार्बन एक साइकिल के बाद तुमको लौटा देना है। तो हमारा एक्स्ट्रा वाला कार्बन कौन है? CO2 का 1 कार्बन है। तो ठीक है, वो फिर से लौटा देता है, लेकिन कहता है चलो एक बार मैं साइकिल करती हूँ, भले ही मुझे लौटाना है लेकिन मेरे ग्लूकोज का 1 कार्बन तो बन जा रहा है। तो ये हर बार ये यूटिलाइज करता है, ये CO2 को कैच करता है, पूरी साइकिल चलवाएगा, ग्लूकोज के 1 कार्बन को ऐड करेगा और फिर जाके रीजनरेट हो जाएगा राइबोलोज का। तो चूंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, सो ओवरऑल 6 टाइम साइकिल विल रन। तो 6 बार होगा तो 6 CO2 यूज होगा, 6 राइबोलोज बनेगा भी और 6 राइबोलोज यूज भी होगा और 6 राइबोलोज बन भी जाएगा। ये कितने होंगे आपके? ये 6 बार साइकिल चलेगी तो एक साइकिल में 2 ATP का यूज हो रहा है, तो 6 बार साइकिल चली तो यहाँ कितने टोटल होगा? 12 ATP। ओके, 12 ADP भी बनेगा। उसी तरह एक साइकिल में 2 NADPH का यूज हो रहा है, जब 6 बार साइकिल चलेगी तो कितने हो गए? इंटू 6 तो 12 NADPH हो गए। एक साइकिल चलने में रीजनरेशन हर बार हो रहा है और हर बार के रीजनरेशन में 2 ATP का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपके कितने हो गए? सॉरी, यहाँ पे आपके 1 ATP का यूज होगा। सॉरी, यहाँ आपका 1 ATP का यूज होगा क्योंकि एक ये जो फास्फोरस है वो 2 मॉलिक्यूल है, तो 1 ATP का यूज होगा केवल रीजनरेशन में, एंड दिस विल रन फॉर 6 टाइम, सो टोटल 6 ATP विल बी यूटिलाइज। ओके, मीन्स in carbogylation 6 CO2 in the total formation of glucose, there will be running of 6 cycle, 6 CO2 will be utilized in one cycle, 2 ATP and 2 NADPH utilized in the production in the cycle of reduction. So into 6 12 ATP into 6 12 NADPH. In the regeneration 1 ATP is being utilized, so 6 cycle is going on, 1 into 6 6 ATP. Total ATP is equal to 6 plus 12. Total ATP 18 ATP will be utilized, 12 NADPH will be utilized, then 1 molecule of glucose will be formed. So overall reaction will be 6 CO2 plus 18 ATP plus 12 NADPH, then there will be formation of 1 glucose, 18 ADP and 18 PI will be released and 12 NADP plus will be released because its hydrogen is being utilized in this cycle. So what you must remember that this cycle is consist of 3 steps: carbogylation, reduction and regeneration. In carbogylation there is fixation of CO2. In reduction, this 3-phosphoglycerate is converted into glycerol aldehyde. In this one cycle 2 ATP and 2 NADPH is utilized because there is 2 molecule of 3-phosphoglycerate. Now in the regeneration 1 ATP is utilized. Previously I have said 2 ATP, it was wrong. 1 ATP is utilized, and this after using this 1 ATP, again there is formation of regeneration of ribulose bisphosphate, so it is the process of regeneration and it utilizes 1 ATP. So overall 18 ATP is utilized because 6 times this cycle will run. 6 times this cycle will run to produce 1 molecule of glucose, so because it has 6 carbon molecule, and in one cycle only 1 carbon molecule of the glucose is being fixed. In this way this Calvin cycle is completed, which consists of 3 steps. The overall calculation of ATP is that 18 ATP is utilized, 12 NADPH2 is utilized, that is being formed in the light reaction, and finally your
6 cycle of Calvin will result into 1 molecule of glucose. Read this cycle again and again. Understand this carbon molecular mystery. कार्बन मॉलिक्यूल के इस मूवमेंट को ध्यान दीजिए. कहाँ एटीपी किस स्टेज में यूज हुआ है इसको ध्यान देना है. NADPH कहाँ यूज हुआ है इसको ध्यान देना है. और साइकिल को के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कि राइबोलोज का क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, अभी आप क्लास 11th में मत जानिए. रूबिस्को एंजाइम पे ध्यान देना है. स्टेप्स का नाम आपको याद रखना है. एंड ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में कितने एटीपी एंड NADPH का यूज हुआ, दैट यू मस्ट रिमेंबर फॉर योर एकेडमिक क्लास 11. ओके, थैंक यू.